Hello and welcome back to Made Legally. Going ahead with our mains answer writing series, this is yet another question whereby the question is being asked in your Haryana Judicial Services and Delhi Judicial Services. The question for you is distinguish between attempt to commit culpable homicide not amounting to murder and voluntary causing hurt by dangerous weapon. Many of you think prima facie by just reading this question or just looking at it that there might not be a very big difference. But when the court has to deal with such kind of cases because of the various evidences and circumstances included in those cases, to differentiate between these two types of offences becomes very, very difficult. Why? Because almost the criteria and everything are similar. There is voluntary causing hurt by dangerous weapon, and in voluntary causing hurt by dangerous weapon, the death can be caused. There is a ground that death can also be caused, and still for that the person may not be held liable for the murder or culpable homicide. But there is yet another offence which talks about giving as an attempt to commit culpable homicide not amounting to murder, as given under 110 of BNS and 308 of IPC. So yes, while you are dealing with such a very simple question prima facie which looks like, but while you will be going ahead with answering it, you might not be able to differentiate between these two offences, because either ways these two offences are way similar. Now, if we see that the past year question has been asked in your Haryana and DGS, so जब हम हरियाणा या दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चन लगाते हैं, हमें ना कहानी नहीं बनानी होती है. Prior to this video, you have already watched the other videos जो कि हमारे पास में 3 क्वेश्चन वीडियोस थी, उसमें मैंने ज़्यादातर हरियाणा के ही क्वेश्चन डील किए हैं या दिल्ली जुडिशियल के. तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत टू द पॉइंट रहता है क्योंकि समय नहीं है. क्वेश्चन लगता बहुत डिफिकल्ट है बट आंसर उतना ही ईजी है. बट फॉर सच क्वेश्चंस देयर इज नो सच बुकिश डिफरेंस गिवन, no commentary, no bookish. It is just a judicial interpretation which is through case laws being given to you. तो भाई आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रिसेंट केस लॉ आ रहा है आपको वो पढ़ना है. अभी जो मैं केस लॉ डील करने वाली हूँ 2010 का है और 2010 का ही ये क्वेश्चन भी है. तो दिस वाज द रीसेंट जजमेंट. हमारी मेड लीगली में ही रीसेंट जजमेंट केस सीरीज भी चलती है जो कि बिल्कुल आपके लिए एप्ट है फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, फॉर योर क्लर्क एग्जामिनेशन एंड every examination, every competitive exam can be cracked through watching the just your landmark or recent case law series. So please make sure that you are watching all the important series which are going ahead in your Made Legally channel. So do subscribe to it. Now going ahead with the answer of this question, whereby you need, for the introduction, you need to explain these two provisions in a very layman language. Okay? In a very layman language, you need to describe what is attempt to culpable homicide not amounting to murder and what is voluntary causing hurt with dangerous weapon. So you need to lay down what are the ingredients included in both these things. Now coming to the main body, you do not have to write simple making the charts. देखिए, दिल्ली और हरियाणा में आपको चार्ट नहीं फॉर्म करने होते हैं कि आप लिखे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड वन डिफरेंस एंड द अदर डिफरेंस. आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है फर्स्टली, एंड सेकेंडली यहाँ पर हम डील करेंगे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस ऑफ रूपचंद वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें एक्सप्लेन किया गया इस क्वेश्चन को. It has observed that under section 110 of BNS, prosecution must prove that the accused has requisite intention or knowledge to cause culpable homicide. अब वो कैसे ascertain हो सकता है? Through the injuries. Through the injuries आप intention और knowledge का पता कर सकते हैं. तो 110 का ये one of the ingredient है. While on the other hand, section 118 जो कि बात करता है voluntary causing hurt by dangerous weapon, उसका क्या रहेगा? आप देखेंगे कि what kind of instrument has been used. ठीक है, वॉट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज बीन यूज. अगर वो बहुत शार्प एज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया इन द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो है कि भाई हाँ, देयर वॉज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ, देयर वॉज अ कल्पेबल होमिसाइड इन्वॉल्व इन सच एन ऑफेंस. बट अगर मैं कोई एक स्टिक ले रही हूँ और उससे मैं किसी के पैर में मार रही हूँ, और उसके बाद जब मैंने पैर में मारा, आप बिल्कुल फैक्ट समझिएगा, मैंने एक स्टिक ली जिसके आपने देखा है वो वुडन स्टिक,
तो मैंने एक सिंपल वुडन स्टिक ली, मैंने उसको पैर में मारा। अब पैर में मारने से मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं है ना, और कहाँ ऐसा कहीं हो सकता है क्या किसी को आप स्टिक पैर में मारे हो तो उसकी डेथ हो जाए? नहीं, बट इट माइट कॉज एन डेथ। कैसे? अगर वो इन्फेक्शियस आपका वो स्टिक हो, स्टिक में आपने देखा होगा वुडन कुछ निकला होता है, वो उसके पैर में लग गया, उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, एंड देन दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन. The accused hasn't hit on the vital part of the body and with not having such sharp-edged instrument, but that somehow caused the death of the person. Will the death of the person is sufficient to prove that he had malicious intention to cause the death? No. So now, while dealing with such cases, while dealing with this kind of case, the court has to look into the fact whether this will amount to simply causing hurt, or will it amount to culpable homicide not amounting to death. Understood? So even if सिंपल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू थिंग्स, अगर आपके पास फैक्ट्स दिए गए हैं तो मेक श्योर यू एनालाइज इन सच अ फॉर्म. अगर फैक्ट्स दिया हुआ है और वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी में हिट नहीं हो रहा है, उस इंटेंसिटी के साथ हिट नहीं हो रहा है कि वो इन नॉर्मल प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस डेथ कॉज हो जाएगी, देन यू विल गो अहेड विद वॉलंटरी कॉजिंग hurt only and not going ahead with your culpable homicide not amounting to murder. Understood? ठीक है, ये एक चीज हमने समझ ली. तो ये रूपचंद वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, मेक श्योर यू राइट ओवर देयर, देन एंड देयर इटसेल्फ, हैव द रजिस्टर, हैव अ पेन, राइट दिस, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में या तो रीइंटरप्रेटेड हुए हैं या तो इनके बारे में पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी न्यू, दिस इज समथिंग विच हैज इवॉल्व्ड थ्रू इंटरप्रिटेशंस. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया. द अदर डिफरेंस विच इज डेल्ट इन द सेम केस वाज that the injury must be likely to cause death. In the first circumstance जो culpable homicide not amounting to murder है, तो वो इंजरी ऐसी होनी चाहिए that जो कि likelihood to cause death, but under another, मतलब जब अगर voluntary hurt है तो may or may not endangers one's life. जैसे स्टिक से पैर में मारना या हाथ में मारना may or may not endangers one life, but अगर वही मैं एक पिस्टल ले रही हूँ और उसको कॉज कर रही हूँ कहाँ पर, उनके हार्ट में शूट कर रही हूँ, तो इट इज लाइकली टू कॉज डेथ. Understood the difference between both these things? ठीक है. Further, in Bhisham Singh and another versus state, court held before accused is made guilty under section 108. 108 मतलब क्या है? Attempt to culpable homicide not amounting to murder. Intention or knowledge must be existing. So for culpable homicide not amounting to murder में intention या knowledge का exist होना important है. Whereas in other hurt वाले केस में intention या knowledge का क्या कहते हैं प्रेजेंस होना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. अंडरस्टूड द थ्री डिफरेंसेस गिवन अंडर द केस लॉ एज वेल एज इन द अदर केस लॉ. ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग अहेड, व्हाइल गोइंग अहेड विद द कंक्लूजन, तो आप सिंपली बताओगे दीज डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स हैव बीन और बोथ द ऑफेंसेस एक्सप्लेन्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. वेरी सिंपल, आप कुछ भी अपनी लेमन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको दोहराने की कंक्लूजन में कोई जरूरत नहीं है. कंक्लूजन इज नथिंग but not to abruptly end your answer. Just not to abruptly end your answer and give some pause to the examiner also that you are ending your answer. You have written one or two line. अब एक चीज समझना जरूरी है कि क्वेश्चन लगते बहुत, अगर ये 10 मार्क्स का क्यों ना हो, पर आपको 10 मार्क्स के 10 मार्क्स नहीं तो 9 मार्क्स तो मिलेंगे. देखिए 10 में से 10 किसी को नहीं मिलता है. ये आपका सेमेस्टर एग्जाम्स या आपके कॉलेज के एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम्स नहीं है, ये आपका जुडिशियल एग्जामिनेशन है. तो एवरेज मार्किंग होगी या तो अच्छी मार्किंग हो जाएगी अगर आप प्रॉपर केस लॉ विद द ईयर लिख के आइए. अब आप एक चीज़ देखते होंगे, जब भी मैं ऐसे टाइप्स ऑफ केसेस रिफ़र करती हूँ, चाहे मैं आपकी जब लेटेस्ट केस लॉ सीरीज रिफ़र कर रही होती हूँ, मैं उसको डील कर रही होती हूँ, तब भी मैं आपको कोई साइटेशन नहीं देती हूँ. जबकि बहुत सारी जगह आपके जो एग्जामिनर्स हैं, जो आपके एजुकेटर्स हैं, वो आपको बताते होंगे कि नहीं राइट दी साइटेशन ऑल्सो. बट एक चीज़ है कि आपका ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के पास शक्ति होती है हर चीज़ याद करने की, पर ह्यूमन ब्रेन की ना एक फॉल्ट भी है कि जब वो एग्जाम डे होगा ना वो सब भूल जाएगा, सब हौच पौच हो जाएगा. तो इसीलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है. विद द हार्ड वर्क कम्स द स्मार्ट वर्क इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. वरना हार्ड वर्क करके भी 2-3 साल में क्रैक होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा. बट अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो स्मार्ट क्या है? ईयर याद करना.
सुप्रीम कोर्ट का है किस हाई कोर्ट का है, ये याद करना, रादर दैन गोइंग अहेड विद द साइटेशन. साइटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. अंडरस्टूड? बिल्कुल भी अगर कोई कह रहा है साइटेशन याद करिए, आपको एक कान सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है कि उस वक्त के लिए आपको अच्छा लगेगा, फ्लारी लगेगा, बट वो फ्लारी नहीं है, वो फुल ऑफ थॉर्न्स वो एरिया है. इफ यू विल वॉक ऑन इट यू विल बी एंडेंजर्ड बाय इट. सो मेक श्योर आपको जितना स्मार्टली वर्क करोगे उतना ही अच्छा रहेगा. Even I'll tell you, there is one of my student who hasn't mentioned any of the case law in her whole examination and still got qualified for her HP judicial services. तो जरूरी नहीं है कि आपको केसेस लिखने हैं, जब तक कि आपका क्वेश्चन आपसे नहीं कह रहा कि राइट द लैंडमार्क केस लॉ और राइट द केस लॉ रिगार्डिंग दिस, तब तो आपको लिखना ही लिख रहा है. अगर नहीं लिख रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग है उस वाले क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं. तो मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क करें. हर वक्त केस लॉ नहीं लिखना है, बट हाँ अगर हम चाहते हैं टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स तो हाँ केस लॉज पता होना चाहिए, रीसेंट केस लॉज एंड लैंडमार्क केस लॉज. उसके मिडिल के कितने केस लॉज है वो नहीं. कोई प्रोविजन है सीपीसी का और वही चीज कोई केस लॉ दोहरा रहा है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट कोई प्रोविजन है सीपीसी का या कहीं का भी और केस लॉ उसकी थोड़ी सी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहा है या उसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो वो लिखने की जरूरत है. और याद रखने का वो केस लॉ is important. So with this I'll end the session for today. I hope you get to know and understand how to write a mains answer on such kind of questions, and we'll be going ahead with such kinds of questions in our coming series. So make sure you subscribe to the channel so that you can get the notification once this video is out. Thank you so much, and with this I'll end the session for today.